and our today's topic is solution of triangles. Now you see, in trigonometry, normally we will deal with a triangle, or I can say right angle triangle. When we deal with the trigonometry, हम ऐसे लेते हैं ना कि sine, cos, tan, cot and secant. But in today's topic, we will deal with any kind of triangle, but in terms of trigonometry. Or basically, I can say we are going to find the relation between three sides and three angles. Okay, triangle may be right angle triangle or not right angle triangle. Triangle आपके पास किसी भी टाइप की होगी बच्चे, तो we will deal with this kind of concept. अब फिर से देखिए, एक आपके पास जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल होती है बच्चे, we will write it as A, B and C, where A representing this vertex and this angle, B representing this angle and capital C representing this angle. And इसमें एक must property है कि the sum of all the angles of triangle is equal to 180 degree. I think आप सबको पता होगा. Now, one standard parameter applied here बच्चे. This side is known as small a. इसको एक नाम दिया जाता है. Opposite to angle B is known as small b. And opposite to angle C is known as small c. So you can say side BC is equal to A, side AC is equal to B, and side AB is known as C. तो मैं यहां पे आपके साथ बच्चे ये कह सकता हूं कि you have three sides A, B and C, and you have three angles. Three side कौन सी हैं? Small a, small b and small c. And three angle कौन से हैं बच्चे? Capital A, capital B and capital C. तो हम इनके बीच में क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रायंगल, ठीक, तो उस ट्रायंगल में आपके पास क्या होना चाहिए कि यू वांट टू फाइंड आउट थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. तो आपके पास अगर एटलीस्ट कोई भी थ्री थिंग्स हैं, आइदर थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स, और टू साइड्स वन एंगल, और टू एंगल वन साइड, तो आप उसकी रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल को फाइंड आउट कर पाएंगे. दिस इज आवर क्वेश्चन. ओके, और इस कैटेगरी में बच्चे सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला आता है, दैट पर्टिकुलर फार्मूला इज कॉल्ड साइन फार्मूला. ये नाम से पॉपुलर है बच्चे, साइन फार्मूला. Okay, now first of all we will do the proof of this formula and then we will move on. Okay, तो सबसे पहले देखिए what is sine formula. तो sine formula is like this one. मैं एक ट्रायंगल ड्रा आउट करता हूं. दिस इज द प्रूफ ऑफ द साइन फार्मूला. हाँ, साइन फार्मूला को इस तरह से लिखा जाता है बच्चे, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी मीन्स टू से एंगल बी अपॉन बी, and sine C upon C. Or you can say, you will write it as A upon sine A, B upon sine B, and C upon sine C. So we can say this is equal to lambda, and this is also equal to lambda. This is known as sine formula. And first of all, we will prove that, and then we will apply it in our questions. So see that this is angle A, this is angle B, and this is angle C. It's very, very easy to prove it. Just draw the perpendicular here and let it be D. Acha, you know it very well that this particular side is known as small a. This particular side is known as small b, and this particular side is known as small c. Acha, we call this as H.
एक सिंपल सी फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के साथ शुरू कीजिए बच्चे। तो वी कैन राइट इट एज h upon c, means to say perpendicular upon c. This is known as sin b। और बड़ा सिंपल है बच्चे इसको प्रूव करना। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन से c sin b। Now come on to this triangle। You can say perpendicular, means to say h upon b, is known as sin c, or we can say h is equal to b sin c। Now in this case we can say that c sin b from first and from second is equal to b sin c। Now what comes? Sin b over b is equal to sin c upon c। ये बच्चे एक रिलेशन आपके पास जनरेट हुआ, ओके, बिटवीन b एंड c। नाउ इफ यू ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर, सपोज दैट अब आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ आउट कर लिया फ्रॉम दिस पॉइंट c to point this, suppose that this perpendicular is f, तो you will find out another relations। और वो रिलेशन क्या होगा बच्चे आपके पास? वो रिलेशन होगा sin a। आप सिमिलरली करेंगे इसलिए मैं उसको नहीं सॉल्व कर रहा। sin a upon a is equal to sin b upon b। okay, now from both these options 1 and 2 we can say sin a upon a sin b upon b is equal to sin c upon c, and this particular formula is known as sine formula। okay, this is the first steps towards the solution of triangles or a relation between the sides and angle। और ये फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे कि फ्रॉम हियर वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एंगल टू साइड्स एंड फ्रॉम टू sides to angle। okay, now come on to my next point, and my next point is cosine formula। now the next particular formula is known as cosine formula। इसके बारे में भी देखिएगा बच्चे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। check it, here is a triangle same type। अच्छा, triangle can be drawn in any ways। ठीक है, मैं एक सिंपल ट्रायंगल के साथ ही चल रहा हूं, cos b cos a। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हीरोन्स फार्मूला? याद है आपको हीरोन्स? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट फॉर्म? यस Sir, by sides we can find the area. Triangle using its sides. yes, when sides are used to find out the area of triangle and whatever be the triangle, okay, so same kind of application is there। let us suppose here is a, this side is known as b and this side is known as c। so our next formula cosine is very very famous for similarity with herons। क्यों? क्योंकि when three sides are given to me a b और c, I can find out each angle। यानी मैं एंगल a भी फाइंड आउट कर सकता हूं, I can find out angle b and I can find out angle c, and this is possible with the help of only one formula which is known as cosine formula। now check it, I am going to drive this formula, फिर उसके बाद मैं आपके पास इसकी
बताऊंगा कि व्हाट इज कोसाइन फार्मूला। सिमिलरली ड्रा आउट द पॉइंट, जैसे हमने पहले किया था बच्चे। लेट अस सपोज दिस इज B and this particular thing is known as H। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं बच्चे, जैसे आपने पहले किया था आप वैसे ही करेंगे। नाउ सी माय पॉइंट, आई एम स्टार्टिंग विद दिस ट्रायंगल। ओके, एंड व्हाट, और यू कैन स्टार्ट विद एनी वन ट्रायंगल्स जिसमें भी आपके पास फॉर्मेशन दी हो कि वी कैन मूव ऑन दिस वे और मूव ऑन दैट वे। अब चेक कीजिए मेरे पास ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी। एक थोड़ा सा मेरे को ट्रायंगल बड़ी करना है, उससे ना अलग अलग बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज क्योंकि हमने पहले भी सेम लिया था, तो लेट अस ए बी एंड सी। अब ऐसे रख ले, ड्रा आउट दिस पॉइंट विच इज नोन एज डी, जैसे हमने पहले किया था। तो यू नो दैट दिस पर्टिकुलर साइड इज सी, this is A and this whole is B। and मैंने पहले भी डिफाइन किया था बच्चे, this side is known as H। तो हम इसी से अपना क्या करेंगे, मूव करेंगे अभी। ओके, नाउ हाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट formation of this particular questions। now if you start with this triangle, okay, so you will find that this particular triangle is right angle triangle, and I can say BC means A square is equal to H square plus DC square। I think आप सबको समझ लग गया होगा what I want to say। in that green triangle, okay, BD means to say H square and DC means to this one। Up, come on to the next phase, this triangle। now in this very particular triangle, I can write C square is equal to H square plus AD square। now put this H square into first or first into second, so what comes, A square is equal to C square minus AD square plus DC square। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा बच्चे, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक, सी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। मैंने इन दोनों में से एच स्क्वायर की वैल्यू को एलिमिनेट किया। ओके, जस्ट टू मेक इट प्रॉपर, कि हमारे पास एक प्रॉपर क्या आ जाए, फॉर्मेशन आ जाए, और आई कैन से कि मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेशन में क्या कर सकता हूँ, बना सकता। हाँ जी, एनी डाउट? चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट साइड। this C square as it is minus AD square as it is, and you know that this BC can be written as AC minus AD whole square। So I'm starting with A square C square minus AD square plus AC square plus AD square minus 2AC into AD, and you will see that AD square and AD square cancel each other। Here you will get A square C square, और आपको पता था बच्चे how we denote AC as B square minus 2 AC as B। अब चेक कीजिए मैं AD की वैल्यू को कैसे लिखूंगा बच्चे, this AD in this blue triangle, AD upon C is known as cos A।
and therefore AD is known as C cos A. And here is the derivation of this formula. Okay, check it how we will write it. In the next step, I will write 2BC cos A is equal to C square plus B square minus A square. And last step is cos A is known as C square plus B square minus A square upon 2BC. And this is known as cosine formula. Got my point? क्या बोलते हैं बच्चे इसको? Cosine formula. That means to say कि when sides are given to you, you will find out. और इसको याद करना देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है. डेरिवेशन तो चलो आप करें या ना करें, बट इसको याद रखना कितना इजी है. Now, if I want to find out the formula for cos B, so we will simply write it as A square plus C square minus B square upon 2AC. Now, if I want to find out cos C, so I can write it as A square plus B square minus C square upon 2AB. हाँ जी बच्चे, बताइए, will you get this or not? इनको हम किस फॉर्मूला की कैटेगरीज में लिखते हैं? कोसाइन फार्मूला. ये एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड बच्चे, तो ये आपके पास कुछ क्या है, फार्मूलाज हैं जिनको हम यहाँ पे क्या करें, यूटिलाइज करें. सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हैज मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सॉरी मेनी टाइप्स ऑफ फार्मूला इज देयर. ठीक है, तो ये मैंने दो बेसिक आपके साथ डिस्कस किए. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज फार्मूलाज कि हम इनको कैसे डिस्कस करते हैं. आई कैन यूटिलाइज द pre-learned formula also as far as trigonometry is concerned. Check कीजिए. The first example which I am going to solve for this, he said tan, prove करने के लिए बोल रहा है बच्चे, b minus c divided by 2, ये एंगल है, is equal to b minus c over b plus c cot a. तो इस क्वेश्चन को बच्चे हमने क्या करना, प्रूव करना. Either you can start from left to right or you can start from right to left. It is up to you. But before you start the question, take one thing in mind. These are sides. ये जो small b, small c है, these are the side. And remaining capital A and this one is angles. तो बच्चे मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. व्हाई? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंगल और आप राइट साइड में जाने के लिए एंगल और साइड दोनों प्रूव करोगे. बट इफ आई मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आपने इन साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना है. एंड नेक्स्ट इज अवर सॉल्यूशन. अब देखिए कैसे. तो टू कन्वर्ट साइड टू एंगल और एंगल टू साइड, मेरे पास बच्चे एक फार्मूला बड़ा कॉन्फिडेंट मोड में है, दैट इज कॉल्ड साइन फार्मूला. अब चेक कीजिए मैं कैसे उस फार्मूले को यूटिलाइज करता हूं. तो अभी मैंने आपको बताया था कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी एंड c अपॉन साइन सी. लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू लैम्डा. तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चे, a इज इक्वल टू लैम्डा साइन ए, b is equal to lambda sin b and c is equal to lambda sin c. ठीक, फिर से देखिए बच्चे, a is equal to lambda sin a, b is equal to lambda sin b and c is equal to lambda sin c. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस b you can write
lambda sine b. Instead of this c you can write lambda sine c. मैंने राइट हैंड साइड शुरू कर ली, lambda sine b minus lambda sine c, cot a as it is. Just take out the lambda and cancel it out, and you will get sine b minus sine c upon cot a. ओके, अब हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू क्या हो, देखिए जब हम इसको डिस्कस करें तो साइन बी माइनस साइन सी एंड साइन बी प्लस साइन सी, तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या आएंगे बच्चे, दिस कैन बी नोन एज साइन सी, इसको देखो साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड इन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 2 cos b plus c by 2, and the next is sin b minus c by 2. लोअर में बचे sin c plus sin d, and I can write it as 2 sin b plus c by 2, and next हमारे पास इसमें क्या होता था, cos b minus c by 2. क्वेश्चन देखते जाइएगा कैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे. तो हेयर यू विल, हाँ जो भी बच्चे इसमें टर्म्स क्या होंगी, सॉल्व होंगी, हम उनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वट एवर बी द क्वेश्चंस. अब देखिए क्या होने वाला है, 2 and 2 कैंसल, दिस बिकम्स cot b plus c by 2 हो रहा है ना, एंड दिस बिकम्स tan b minus c by 2. एक चीज बच्चे मैं अभी आपके साथ करते आ रहा था, लिखता आ रहा था, दैट इज cot a. ठीक, cot a by 2 था शायद क्वेश्चंस में बच्चे, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी इन द बिगनिंग, तो ये cot a by 2 था. नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज cot a by 2. ये साथ साथ ही चलता आ रहा है, एंड सी माई क्वेश्चन, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर. देखिए b प्लस c की वैल्यू क्या होती है, 180 माइनस a डिवाइडेड बाई 2, आई कैन राइट इट एज 90 माइनस a बाई 2. फ्रंट पे क्या है, cot, तो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू tan a बाई 2, tan b माइनस c बाई 2 एंड cot a बाई 2. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बच्चे, tan एंड cot को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए. तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan b माइनस c बाई 2. ये है बच्चे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में एक छोटी सी क्या है स्टार्टिंग, कि हाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल. हाँ जी, किसी का भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. अभी हम और भी यूटिलाइज करेंगे, ये मैंने एक फॉर्मेट आपके पास क्या किया, यूटिलाइज किया. नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल इन दिस क्वेश्चन, हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे. ही सेड प्रूव दैट a sin b माइनस c. अच्छा, इसमें ना एक सिमिलैरिटी बड़ी होती है. नेक्स्ट b sin c माइनस a और c sin a माइनस b, इसको हम किसके इक्वल प्रूव कर रहे हैं, जीरो के इक्वल क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं. फिर से देखिए, a sin b माइनस c, b sin c minus a and c sin a minus b, and we want to prove that they are equal to 0. तो एक चीज को अगर आप प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल मूव टू द नेक्स्ट. ओके, वो आपके पास बनेगी ही बनेगी, डोंट वरी अबाउट दैट क्या आंसर आएगा, बट आप डेफिनेटली उसमें उस तक पहुंच जाए. कैसे, देखिए
देखो, व्हेन विल यू से दैट ऑल द थिंग्स विल बी जीरो, या तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो, साइड्स में, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंगल्स। फिर से एक बार सुन लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि या तो ये पूरे का पूरा एंगल किस में कन्वर्ट होना चाहिए, साइड्स में होना चाहिए, या पूरे का पूरा किस में होना चाहिए, एंगल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ही हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट इन सिंपल वे, अब मैं शुरू कर रहा हूं इसको, तो हम उसी फॉर्मेशन में आते हैं बच्चे, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, एंड साइन सी अपॉन सी। हमने इसको किसके इक्वल सपोज कर लिया बच्चे, दिस वन। तो नाउ यू नो इट वेरी वेल कि साइन ए कैन बी रिटन एज ए के, साइन बी कैन बी रिटन एज, हाँ जी, बी के, सॉरी लैम्डा कह लीजिए, के नहीं, एंड साइन सी इज नोन एज सी लैम्डा। और मैं यहां से स्टार्ट करूंगा बच्चे, आई थिंक आप सारे समझते होंगे, जस्ट फर्स्ट पार्ट्स, ए एज इट इज, आई एम ओपनिंग दिस फार्मूला। जैसे हम ओपन करते हैं, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस सी cos b and sin c. I'm just starting with this question. मैंने जस्ट इसको शुरुआत की है, ओके, और ये उसी में से ओपन अप हो रहा है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई एम जस्ट राइट अप द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ साइड। देखिए कैसे, ए साइन बी को हमने अभी अभी कुछ लिखा था बी लैम्डा, एंड इसको बच्चे मैं क्या लिखूंगा, कॉस सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट माइनस कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, एंड साइन सी को हमने अभी बनाया था, दैट इज इक्वल टू सी लैम्डा। नाउ व्हाट वन थिंग यू विल डू हियर, इस ए को अंदर ले जाइए, तो इट बिकम्स ए बी एंड इट बिकम्स ए सी। अब आप एक चीज इसमें और देख सकते हैं बच्चे, दिस ए बी एंड ए बी कैंसिल ईच अदर, दिस ए सी एंड ए सी कैंसिल ईच अदर। अब आप क्या कर सकते हैं, टेक लैम्डा बाई 2 एज अ कॉमन क्वांटिटी। देखिए, here is lambda 2, lambda 2, what is left, a square plus b square minus c square minus a square minus c square, एंड नेक्स्ट में देखिए क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। चेक कीजिए अब क्या क्या होने वाला है वो चेक कीजिए, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल, तो वी गॉट 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, जस्ट टेक 2 कॉमन, तो आपके पास बचे पहली वैल्यू का सॉल्यूशन आया ओवरऑल सॉल्व करने के बाद, लैम्डा टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी, तो आई विल राइट इट एज lambda time b square minus c square, and I think now you can understand next का solution क्या आएगा, lambda times c square minus a square, and next का solution क्या आएगा, lambda times a square minus b square, and ultimately at the end they will cancel each other and we are approaching to 0। हाँ जी बच्चे, कैसा लगा क्वेश्चन, whether you get it or not, are you able to listen me na? Yes, sir. तो
तो एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ बच्चे हमने जाना, और कुछ भी नहीं है। अभी मैं और भी फार्मूलाज करूंगा, ठीक है, बट ये हमारी बिगनिंग थी कि व्हाट आर द बेसिक फॉर्मेट ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब जैसे देखिए, वन सिंपल थिंग इज गिवन टू मी कि इन एनी ट्रायंगल A is equal to 18, B is equal to 24 and C is equal to 30. What is the value of cos A or cos B or cos C और sin A, sin B, sin C, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस कि अगर आपको ये फार्मूला पता है cos A which is known as B square plus C square minus A square upon 2BC, आप क्या करेंगे बच्चे? आई थिंक every one of you know that. Just put up the values of ABC, you will get the value of cos A, और cos A की वैल्यू आ जाने के बाद you will find out sin A, tan A और anything else whichever you want to find. Okay, इन्हीं फार्मूलाज को बच्चे, ये तो मैंने अभी आपके साथ दो ही फार्मूलाज डिस्कस किए। फर्स्ट इज नोन एज साइन फार्मूला, सेकंड इज नोन एज कोसाइन फार्मूला। बच्चे ये साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला के नाम से जानते हैं। एक और इसमें इंटरेस्टिंग आता है, ओके, एंड दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। और इनमें ना बड़ी सिमेट्री है। ये आगे आपके काम आएगा, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस साइन प्रोजेक्शन फॉर्म? ओके, I can again draw out the formation. अच्छा, आप एक चीज बता सकते हैं, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ साइन? आपने अभी थोड़ा सा देखा होगा कि साइन में हम क्या चीज कर रहे थे। देखो, साइन में एक स्पेशलिटी ये थी कि व्हेन थ्री एंगल्स आर गिवन टू यू, आप उसमें साइड्स में जाते हैं, एंड व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन टू यू, तो आप उसमें किस में जाते हैं? एंगल्स में। कोसाइन तो स्पेशलिटी ये थी कोसाइन की कि अगर आपको थ्री साइड्स दी हैं तो आप डेफिनेटली फाइंड आउट द एंगल। ओके, अब देखिए इस फार्मूला के रिगार्डिंग आई विल अगेन राइट इट एज ए, बी एंड सी। सेम, दिस इज नोन एज ए, this is known as B, and this is known as C. Now what you can do, just draw out the perpendicular. Okay, and let us suppose this is H. देखिए, what I can do in this question, I am just starting with this triangle. Okay, now in this triangle I can write BD over C is equal to cos B, or I can say BD is equal to C cos B. Now in the next step, check this triangle. And in this particular triangle, I can write DC upon B is equal to cos C. So I can write DC as B cos C. Now what we can do, here is BD, here is DC. So I will write BD plus DC. C cos B plus B cos A. BD plus DC. This BD plus DC summation is known as A. C cos B plus B cos. देखिए क्या हुआ? This formula is known as projection formula, and I know that
कि अब आप इसके दोनों बाकी के परफॉर्मास भी लिख देंगे। इफ आई वांट टू राइट इट बी, हाँ जी, एनीवन, तो वी कैन राइट इट एज a cos c and c cos a. Now if I want to find out c, so we can write a cos b plus b cos a. क्या बोल रहे हैं बच्चे हम इस फॉर्मूले को? प्रोजेक्शन फार्मूलाज। और ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, फार्मूलाज हैं, जिनको हम इनके बेस पे क्या करते जाते हैं, आगे आगे क्या करते जाते हैं, ड्राइव करते जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, हम इन्हीं की हेल्प से बच्चे आपका हिरॉन फार्मूला भी क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से। अब नोट कीजिए, एक और फार्मूला बस आपको बताऊंगा एंड देन वी मूव फर्दर। फार्मूलाज बहुत हैं, डेरिवेशंस बहुत हैं इसमें। सपोज दैट वी हैव एनी ट्रायंगल एंड दिस इज कॉल्ड सेमी सम फार्मूला, sin a by 2. It can be written in sine, cos or tan. Okay, sin a by 2 is written as s minus b, s minus c and bc. आप जानते हैं ना what is s? That is 2s is known as a plus b plus c, जिसको हमने सेमी फॉर्मेट में क्या किया था, डिफाइन किया था। तो let us start with this angle cos 2 theta. I think you all are aware about this format. This can be written as 2 sine square theta, or I can say, सबको पता है मैं किस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं बच्चे, हाउ वी विल राइट इट, और I can say 2 sine square theta can be written as 1 minus cos theta, or I can say 2 sine square theta by 2 can be written as 1 minus cos theta. बस मेरी स्टार्टिंग यहीं से होने वाली है कि मैं अपने इस एंगल को किस फॉर्मेशन में दूंगा। एंड हियर इज माय क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ थीटा आई एम राइटिंग 2 sin square a by 2. That means I can write it as 1 minus cos a. एंड cos a का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 1 minus b square plus c square minus a square divided by 2bc. किसी को डाउट तो नहीं है रिगार्डिंग दिस फॉर्मेशन? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चे। एंड दिस फॉर्मूला इज 2bc which can be written as 2bc minus b square minus c square minus, not minus, it is plus a square. And you will check that अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन कर लूं तो it becomes b plus c whole square, sorry, b minus c whole square, and this is plus a square. नीचे बचे क्या चल रहा है, 2bc. नेक्स्ट चेक कीजिए, नाउ दिस इज a square minus b square which can be written as a plus b. I think आप समझ गए होंगे. एंड नेक्स्ट इज a minus b अपॉन 2bc. और अगर मैं अब ज्यादा आगे ना जाऊं बच्चे, तो दिस फॉर्मेशन विच इज विद यू कैन बी डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे इसको, देखिए, a प्लस b प्लस c minus 2c. This is known as 2s, this is known as 2c. So I can write it as 2s minus c
Similarly, this can be written as 2s minus b. नीचे क्या आ रहा है बच्चे? 2 times of bc. Got my point? जो मैं इस assumptions में आपके पास क्या कर रहा था, प्रूव कर रहा था. आई थिंक आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर. और ये मेरा आपके पास क्वेश्चन रहा बच्चे, 2 sin square a by 2. This cancelled and sin a by 2 is known as s minus c s minus b upon bc under root, which is known as semi-sum formula. Or we can derive number of formulas from these concept. और फिर मैं इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चे आगे वाले क्वेश्चंस में क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा. मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको सम अप करूंगा. एक मेरे पास, यस बच्चे. So why you have written 2 sin square a by 2? नहीं, हमारे पास फार्मूला क्या था बच्चे? यही था ना, व्हेन वी स्टार्ट इट, तो यहीं से शुरू करना था ना हमने. वी वांट टू प्रूव दैट sin a by 2 is equal to this one. तो मेरी स्टार्टिंग ही इससे हुई थी बच्चे. बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड को नहीं किया, मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता है. चेक इट. Okay, sir. एंड अल्टीमेटली एंड में आके मैंने उसी को यूटिलाइज कर लिया. ओके, लीजिए. Okay. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ही सेड cos A is equal to sin B. बच्चे एक ये डिफरेंट टाइप की आपके पास ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक, which is known as solution of triangle. He said if this configuration is okay, कि cos A is equal to sin B upon 2 sin C, then show that triangle is isosceles. अब हम इससे शुरू करेंगे कि अपने ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है. तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं टू प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, कि हम सभी को साइड्स में चेंज कर. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. नाउ अभी अभी हमने डिफाइन किया था बच्चे कि sin b कैन बी रिटन एज लैम्डा b and sin c can be written as lambda c with the help of sine formula. तो आप इसको लिख दीजिए बच्चे lambda b and this can be lambda c. इसके साथ ये कैंसिल कर दीजिए, c के साथ इस c को कैंसिल कर दीजिए. ठीक, आगे चलते हैं. 2 के साथ इस 2 को कैंसिल कर दीजिए. and when you cross multiply it, b square plus c square minus a square is equal to b square. b square के साथ b square कैंसिल कर दीजिए. Can we say c is equal to a? And when c is equal to a, we can say triangle is what? Isosceles, because two sides are equal. Okay, this is the first session of solution of triangles. Just to check out the relation between three sides and three angles, और उसके corresponding जो भी character हैं, कि how we will generate sides from the angles or angles from the sides. This is the formation. As far as your syllabus is concerned, तो आपके सिलेबस में बच्चे साइन और कोसाइन सिर्फ 2 ही फार्मूलाज हैं, अदर की जरूरत नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज के लिए. Got my point? Yes, sir. Okay. And that's all for the day.